سائڈ پہ موضوع اگر میں اس جانتے کہتے ہیں نا کل تاڑی واری تھے اج ساڑی واری, مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایسے ہی معقولوں کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کر دی ہے. کل جس طریقے سے جتھا بازی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد میں, اور اسلام آباد میں داخل ہونے کے لیے جس طریقے سے ریاستی وسائل اور ریاستی سرپرستی میں پلنے والے جو انتشار پسند ہیں ان کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا تھا, اب ریاست کی طرف سے ان لوگوں کو ٹریک اینڈ اریسٹ سسٹم کے تحت ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا ہے. اور گزشتہ رات اس حوالے سے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل تھی, کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چند اہم ترین مقامات پر اہم ترین لوگوں کو حراست میں لیے جانے کے لیے کارروائی ہوئی ہے. اور وہ تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ نہیں, بلکہ وہ تمام لوگ تھے جو مختلف سی سی ٹی وی کیمراز کے اندر ریکارڈ ہوئے ہیں ریاست کے اوپر, اور ریاست کی طرف سے وہ تمام لوگ جو ریاست کی حفاظت پر معمول تھے ان کے اوپر حملہ آور ہونے کے چکر میں. اور یہ تمام لوگ جن کو اس مرتبہ گرفتار کیا جا رہا ہے, یہ بات میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس مرتبہ ان تمام لوگوں کا جو مقدمہ ہے وہ عام عدالتوں میں, عام سویلین عدالتوں میں نہیں چلنا, کیونکہ وہ تمام لوگ جو اس سارے نظام کو دیکھ رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ سویلین عدالتوں میں مقدمہ چلانا اور مقدمہ چلا کر ان انتشار پسندوں کے حوالے سے کسی طرح کا فیصلہ لینا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. لہذا دو چیزیں ہمارے سامنے بہت ہی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں, بھلا کون سی, یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے, اور اس سوال کا جواب ہم ذرا تلاش کرتے ہیں تھوڑا سا آگے چل کے. البتہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہو تو پاکستان تحریک انصاف کی رنگ بازیوں کا ذکر نہ ہو رہا ہو تو یہ کسی بھی طور پر ممکن نہیں. حالیہ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اور یہ احتجاج کے چکر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے جو رنگ بازیاں سامنے آ رہی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی رنگ بازی تو کل پوری کی پوری ہی نشر کر دی گئی کہ کس طریقے سے جناب انہوں نے جو ہے خیبر پختونخوا ہاؤس میں انٹری ڈالی اور کس طریقے سے خیبر پختونخوا ہاؤس سے ایگزٹ لیا, اور اس والے سے سی ٹی وی فوٹیج کا ریکارڈ بھی منظر عام پر آ گیا ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب جو 3:15 پر خیبر پختونخوا ہاؤس میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہ 4 بجے خیبر پختونخوا ہاؤس کے عقبی دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اپنے تمام جو کہتے ہیں نا حلقہ احباب, جو ان کا حواری ٹولہ ہے, جو ان کے ساتھ جو ان کے ذاتی خدمتگار ہیں, ان کے ساتھ وہ اپنے یہ جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے اس سے نکلتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اغوا کا ڈرامہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے والے تھے, وہ چونکہ انہوں نے خود اپنے لیے ہی رچایا تھا تاکہ وہ عمران خان صاحب کی نظروں کے اندر یہ بات کو باور کرا سکیں کہ جناب یہ جو احتجاج ہو رہا تھا اس احتجاج کا لک میں نے نہیں توڑا, اس احتجاج کی کمر میں نے نہیں توڑی, کیونکہ میں تو خود چکیا گیا تھا. انفیکٹ علی امین گنڈا پور صاحب یہی بات باور کرانا چاہ رہے تھے کہ جناب میں تو اغوا ہو گیا تھا, لہٰذا مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے عمران خان صاحب سے اگر اڈیالہ جیل میں پوچھا جائے کہ جناب آپ کے اس بیان نے باہر یہ آگ لگا دی ہے, یا جناب عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت کے اندر عمران خان صاحب سے پوچھا جائے کہ جناب آپ تو 9 مئی کے چکر کے اندر آدھے پاکستان کو آگ لگی ہے, تو عمران خان صاحب کہتے اچھا کب کیسے, مجھے تو پتہ نہیں, میں تو جیل میں تھا. یہی بات ابھی علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کو کہنی تھی, کیونکہ اب عمران خان صاحب کے سامنے علی امین گنڈا پور صاحب کی پولیٹیکل پوزیشن کچھ زیادہ بہتر ہونا شروع کی تھی, اور علی امین گنڈا پور اپنے آپ کو لیڈر محسوس کرنے لگ پڑے تھے. لہٰذا انہوں نے عمران خان کی نظروں سے اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا ان کے قریب لا کر اور پاپولر پبلک سینٹیمنٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن کیا کیا جائے, چونکہ اس مرتبہ وہ والا کوسار مارکیٹ والا جو ڈرامہ تھا وہ چلتا ہوا نظر نہیں آیا, لہٰذا وہ جو ویڈیوز ہیں, یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں, یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور جہاں بھی تھے, جس کے ساتھ تھے, وہ اپنی مرضی کے ساتھ وہاں موجود تھے, ان کو کوئی لے کے نہیں گیا تھا. اور پھر وہ سارے کا سارا ڈرامہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رچایا تھا, وہ ڈرامہ بھی زمین بوس ہو گیا, اور اب عمران خان صاحب سے علی امین گنڈا پور صاحب کو کوئی نہیں بچا سکتا, یہ بات ہے. دوسری جانب علی امین گنڈا پور صاحب کی ممکنہ جو ہے وہ خود ساختہ یہ جو گمشدگی ہے, اس کے اوپر خیبر پختونخوا اسمبلی کا بھی ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں یہ کتے رنگ باز تھے, تھلے بھی رنگ باز. ایسی سچویشن وہاں پر نظر آئی کہ یہ اجلاس انفیکٹ بلایا گیا تھا علی امین گنڈا پور کی پراسرار گمشدگی کے حوالے سے, اور یہاں پر تقاریر ہونی تھی اراکین اسمبلی کے طرف سے, اور اراکین اسمبلی نے
जो अपना मौक़िफ़ था अपनी तकारीर के ज़रिए वो अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करना था कि जनाब हमारे पार्लिमानी लीडर जो है उसको लापता हुए हुए अब तकरीबन 24 घंटे 48 घंटे हो चुके हैं, लिहाजा उसको बाज़ियाब कराया जाए। अदरवाइज़ जनाब हम काली पट्टियाँ बांध के बैठेंगे, हम जनाब खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना देंगे, हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, व्हाटएवर। उन्होंने जो भी पॉलिटिकल स्टांस लेना था वो उनको लेना था, लेकिन यहाँ पर भी रंगबाजी का जो है वो ज़बरदस्त मुज़ाहरा हुआ, क्योंकि वो तमाम लोग जो वहाँ पर अपने इजलास में अपने वज़ीर आला को बाज़ियाब कराने के लिए आए थे, वो बेचारे खुद अपने ही पॉलिटिकल वर्कर्स के हाथों यरकमाल होकर बैठ गए। और ये प्लान भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, क्योंकि ना ही उनको रियासत के खिलाफ तकरीर करनी पड़ी, ना ही उनको हुकूमत के खिलाफ तकरीर करनी पड़ी, ना ही उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यानी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना पड़ा, और ना ही उन्हें किसी तरह की कोई कहते ना हेट लगे ना फटकरी, रंग भी चोखाए। बिल्कुल ऐसे ही रंगबाजी कर दी गई। इस इजलास को बुलाकर कारकुनों को अंदर घुसाया गया, कारकुनों की तरफ से नारेबाजी की गई, कारकुन जो है वो असम्बली हाल के अंदर घुस गए, कारकुनान ने जनाब गैलरी पर कब्जा कर लिया और अरकान असम्बली अपने ही कारकुनों के हाथों यरकमाल होकर बैठे रहे। ये जो रंगबाजी है खैबर पख्तूनख्वा की, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। दूसरी रंगबाजी जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था वो है जनाब सलमान अकरम राजा साहब कि उनसे जब पूछा गया कि जनाब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर थे, इन्होंने कारकुनान को अब जो है वो रियासत के आगे फेंक दिया, और खुद जो लीडर साहिबान थे ये अपने घरों में बैठकर बड़े एसी वाले कमरों के अंदर बैठ के काउच के ऊपर कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़ के टीवी लगाकर या सोशल मीडिया देखते हुए कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ये जनाब एहतजाज के लिए क्यों सामने नहीं आए, तो इसका जवाब आपको पता है सलमान अकरम राजा साहब ने क्या दिया। सलमान अकरम राजा साहब ने इस सवाल का जवाब के जनाब ये जो लीडरशिप है ये लापता है, उन्होंने एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट के अंदर जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब ये हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम लाहौर में आ जाते, हम डी चौक पे आ जाते, अपने आप को एक्सपोज करते, और अपने आप को एक्सपोज करते हुए हम जो है वो गिरफ्तारी कबूल कर लेते और गिरफ्तार हो जाते, और गिरफ्तार की के बाद क्या होना था, अंधेरा, क्योंकि ना ही कोई लीडर होना था, ना ही ये जो पार्टी है इसको कोई लीड करने वाला होना था, और ना ही दोबारा किसी तरह का कोई एहतजाज होना था। लिहाजा हमने इस बात को एक पार्टी पॉलिसी बना लिया कि जब हमने लीडरशिप को एक्सपोज नहीं करना, कारकुनान जो मर्जी करते रहे, लीडर्स ने जो है वो महफूज रहना है, लीडर्स ने अपने अपने घरों में रहना है, उन्होंने गिरफ्तार होने से खुद को बचाना है ताकि पार्टी को चलाया जा सके। अब इस मौके के ऊपर जनाब सलमान अकरम राजा साहब को 7 नहीं 8 सलामें ही दी जा सकती हैं, क्योंकि ऐसा तारीखी मौका, एक ऐसा वकील जो कि पाकिस्तान का टॉप लॉयर के अंदर जिसका शुमार होता है, एक ऐसा वकील जो जिसके बारे में बात कही जा सकती है कि इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम तरीन रहनुमा है, सेक्रेटरी जनरल अहम तरीन रहनुमा है, और वकील रहनुमा होते हुए, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल होते हुए वो अगर इस बात का इजहार करता है कि जनाब जो लीडर अंदर चले जाएं उनका सियासी मुस्तकबिल फौत हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि सलमान अकरम राजा साहब, इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम लीडरान जो इस वक्त जेल में हैं, जनाब ये जो है सलमान अकरम राजा साहब, इनके मुताबिक तो इन तमाम लीडरान का जनाब हो गया है सियासी मुस्तकबिल ख़त्म, और अब सियासी मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान के उन लीडर्स का है जो छुपते फिरते हैं और गिरफ्तारियां नहीं देते। अजीबोगरीब मौका है, और इनफैक्ट ये रंगबाजी है इस वजह से कि लोगों को इस बात से बावर कराया जाए कि जनाब हमें पता था कि हमने बाहर निकलना है, लेकिन हमारा बाहर ना निकलना, हमारा खुद को एक्सपोज ना करना, हमारा अपने बीवी बच्चों के साथ घरों में बैठकर जनाब सोशल मीडिया देखते हुए एहतजाज में शिरकत करना, ये पार्टी पॉलिसी थी। और अगर ये पार्टी पॉलिसी थी तो लाख दिल लानत है पार्टी पॉलिसी पर। इस तरह की पार्टी पॉलिसी कम से कम किसी भी सियासी जमात को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काफ़ी नहीं होती, और शायद यही वजह है कि रियासत ने अब दो टोक अंदाज में इस सारे जो पार्टी के जो अगर आपसे ये कहूँ कि वो सरकर्दा अफराद हैं उनसे निपटने का फैसला कर लिया है, और इंतशार पसंद अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज़ किया है। क्योंकि ये बात तो तय कि इस एहतजाज के अंदर या इस एहतजाज के नाम पर रियासत पर हमले के अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनान नहीं, बल्कि इनके साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो रियासत के लिए इंतहाई मतलूब भी थे, और ये वही ग्रुप है जिसको बतौर ख़ास अफ़गानिस्तान से इम्पोर्ट करके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर न सिर्फ बसाया गया था, बल्कि इन तमाम लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से जाली दस्तावेज़ात की बुनियाद पर, जाली डोमिसाइल की बुनियाद पर इनको जनाब पाकिस्तान की शहरियत भी दी गई, और ये तमाम के तमाम जो है वो बुनियादी तौर पर अफगान बाशिंदे हैं। अब चूँकि इनको एक
पूरे प्लान के तहत 12-14 हज़ार लोग हैं जिनको प्लान किया गया है कि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से निकलना है अली अमीन गंडापुर की सरबराही में और पाकिस्तान के अंदर हुआ हा मचानी है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो सिर्फ ये जो जुलूस था 7-8 हज़ार लोगों का, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से ही बरामद हुआ। मोटरवे पर, जीटी रोड पर आपको किसी जगह पर कोई भी हंगामा या किसी तरह का कोई जुलूस डी चौक, इस्लामाबाद, रावलपिंडी की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम लोगों को जानबूझकर इस तरीके से ट्यून किया गया है, इस तरीके से प्लान किया गया है कि इनको जब भी बुलाया जाएगा जनाब ये कच्चे धागे से बंधे हुए चले आएंगे। अब सूरत ये बनी है कि ये तमाम लोग या इनमें से वो लोग जो आगे बढ़ चढ़कर हमला कर रहे थे, इनकी फेशियल रिकग्निशन की जा रही है और इनके फेशियल रिकग्निशन के बाद इन तमाम लोगों को मुख्तलिफ जो सीसीटीवी कैमराज हैं, जो सेफ सिटीज़ के इस वक्त कैमराज हैं, उनकी मोबाइल लोकेशन, उनकी फेसबुक एंटिटीज़, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए इन तमाम लोगों को ट्रैक किया जाएगा और इन तमाम लोगों को ट्रैक करके इनको इनके घरों से उठाया जाएगा और इनकी शहरियत की डॉक्यूमेंट्स का असल में जो असल चीज़ है, इन तमाम लोगों की शहरियत की डॉक्यूमेंट्स का असल में जायज़ा लिया जाएगा कि जनाब इनकी पाकिस्तान की शहरियत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। अगर दुरुस्त होंगे तो उनको जनाब जो भी उनके खिलाफ कानून की कार्रवाई होगी वो करने के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा और अगर उनके जो कानून की शहरियत के हवाले से जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो दुरुस्त नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उनको देश निकाला भी दिया जाएगा, उनको जाकर अफगान बॉर्डर के ऊपर किक मार के पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकाल दिया जाएगा और ये वो अमल है जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये जो कार्रवाई जिसका जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ जो गुज़िश्ता रात जारी रही है, इस कार्रवाई में अब तक इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 342 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और इन 342 अफराद की गिरफ्तारी के बाद इनकी जो शहरियत है इनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और ये ऐलान आया है वफाकी हुकूमत की तरफ से कि जो आपने जो करना था वो कर लिया। यानी आपने आना था, आके आपने पत्थरबाजी करनी थी, आपने आके जनाब यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग करनी थी, आपने यहाँ पर आकर रियासत की इमलाक को नुकसान पहुँचाना था, जो जो कुछ करना था आपने वो कर लिया। नाउ इट्स आवर टर्न, अब हमारी बारी है और अब हम आपके साथ जो सलूक है वो सिर्फ ये नहीं करेंगे कि आपको उठाकर जेलों में डाल देंगे। अब आपके खिलाफ जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करके कार्रवाई होगी और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के शहरी होंगे और पाकिस्तान के शहरी होते हुए रियासत पर हमला करने में जो है वो ताउन कर रहे हैं, तो जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि इस मरतबा इन तमाम लोगों को सिविलियन अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा बल्कि रियासत पर हमला करने और बगावत करने जैसे संगीन जराइम में इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन आईनी तरामीम के बाद और आईनी तरामीम के बाद इन लोगों के खिलाफ जो भी मुकदमे चलेंगे वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलेंगे और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो सूरत हाल है वो मुझे लग रहा है कि शायद ये अब इनएविटेबल है। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो मुकदमात हैं ये चल के रहेंगे, ये मुझे रुकते हुए या इससे किसी की जो पीछे हटने का जो मौक़िफ़ है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में ये जो आईनी तरमीम है इसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस होगा और इसके साथ साथ ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो चीज़ें हैं ये भी मुझे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुझे ज़रूर सारी चीज़ें आपको